प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव की है, फिर बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव की है, वो भी डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव की है, वो भी डिस्कस किया हमने। एंड नाउ देयर आर टू टर्म्स व्हिच आर टू बी डिस्कस्ड. नंबर वन इज we can say it is term number third. It is what we call horizontal range. Horizontal range. Okay. So what is the horizontal range? Horizontal range is the distance covered by the projectile in going from O to A in horizontal direction. Is this clear to you? The maximum distance covered by the projectile in horizontal direction, in x direction, and going from O to A. जो O से A तक जो horizontal distance होगी, that is what we call horizontal range. Is this clear to you? It is represented by capital R. Generally, it is represented by capital R. Okay? तो अब यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. So what is range? Range is the maximum horizontal distance covered by the projectile during its flight in going from point O to point A. What is point A? Where it first hits the ground. Okay? And now there is a necessary condition for the two point of projection and point where it hits the ground, that both O and A must lie on the same horizontal plane. This is very important here. And now अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की मेजर करनी है, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन ही ले लेंगे यहाँ पे. सो कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O to A. O is point of projection, A is the point where it first hits the surface. First hits the ground. First hits the plane. Is this clear to you? कौन सा plane? Which passes horizontal plane which passes through the point of projection O. This is very important here. And now यही मोशन हम ले लेंगे from O to A. तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है. We have कौन सी रिलेशन है? पोजिशन, टाइम relation. So what is the position time relation? In horizontal direction it is x minus x naught equal to u x t plus half of ax t square. This is the relation, okay? And now here, what is x? X is the final position, ठीक है ना? Final distance, final displacement from O to A, and it equal to what? R. जो हमने पहले जिसको हम कहते हैं range. X is range here, R. And now what is x naught? X naught is the initial position. तो initial position क्या है? 0. Is this clear? Final position है R के बराबर. What is u x? Velocity in horizontal direction. It is u initial velocity. U cos of theta. Okay? And t is here. जो टाइम इसको लगेगा इन गोइंग फ्रॉम O to A, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. सो T इज हियर, T इज इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T. ओके? एंड व्हाट इज AX? AX, as you know that this is constant in absence of any air resistance, any opposing force or supporting force. This UX is constant. ठीक है? अगर ये कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी? वो 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी. इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0 इन x डायरेक्शन. ओके? देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स x के बदले r माइनस 0 इज इक्वल टू ux के बदले हम लिखेंगे u cos of theta, ओके, इनटू t. t मींस कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट. Okay, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ये ax is 0, ये सारा 0 बनेगा, therefore 0. So we can write as range is equal to
u cos of theta into t is टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना? ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने पहले एक्सप्रेशन डिराइव की है. टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इक्वल टू ट्वाइस u sin theta divided by g. Twice u sin theta divided by g. Okay, we will put this here in this expression. Therefore, r will become u cos of theta, t के बदले लिखेंगे twice u sin theta divided by g. It can be written as u into u हुआ u square. This will become twice sin theta cos of theta divided by g, and it can written be as u square 2 sin theta cos theta is equal to sin of 2 theta divided by g. Is this clear? Because यहाँ पे लिख सकते sin of 2 theta is equal to twice sin theta cos of theta. Is this clear? तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो ये एक्सप्रेशन निकली, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? दिस फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द range. Is this clear? This shows that the range, the maximum horizontal distance covered by the projectile in flight, depends upon the initial velocity, depends upon the angle of projection. Is this clear to you? These are the two factors on which it depends. Okay. Now there is a special case for the horizontal range. The special case is हमारे पास अब रेंज किसके बराबर है? u स्क्वायर sin 2 theta divided by g. ओके, तो अब यहां पे देखिए, जब हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल को, तो ये खास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है. सिंस वी नो दैट देयर इज अ अलाइड एंगल, ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है? साइन 180 माइनस थीटा. इट कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट. 180 जब होगा एंगल साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, तो आएगा थीटा, साइन थीटा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो इट मींस साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. इज दिस क्लियर? ओके, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, पता होगा ये इसके बराबर होता है. इसके बदले ये भी लिख सकते हैं. अगर थीटा का कुछ वैल्यू देंगे तो 180 से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही यहां से डायरेक्टली आ सकता है, डजंट मैटर, ठीक है. तो और इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ, इफ साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं 180, अगर एंगल डबल होगा ट्वाइस थीटा, तो अब आएगा ये साइन ऑफ ट्वाइस थीटा. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे साइन ऑफ ट्वाइस थीटा जो है ना, इसके बदले हम साइन ऑफ 180 माइनस ट्वाइस थीटा भी लिख सकते हैं. देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसका भी वही वैल्यू आता है, इसका भी वही वैल्यू आता है. कोई भी वैल्यू दे दीजिए थीटा का, जो वैल्यू यहां से आएगा वही वैल्यू यहां से भी आएगा. यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाय जी इज आल्सो इक्वल टू, कैन आल्सो बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 minus twice theta divided by g. Is this clear? So it can also be written as u square sin of, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आएगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी. Is this clear? तो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है. तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आएगा. यहाँ पे थीटा के लिए पुट कीजिए कुछ वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पे वही वैल्यू आएगा जो यहाँ से आएगा. इज दिस क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे जो एंगल है इट इज थीटा है, यहाँ पे जो एंगल है इट इज 90 माइनस थीटा. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेंज आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो अगर यहाँ पे 30 वैल्यू, या इस तरह से मैं समझा दूंगा, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे समझाने के लिए. व्हाट आई मीन टू से,
आपको सेम रेंज यानी सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगी एट टू डिफरेंट एंगल्स, ठीक है ना। ये कंपेयर कीजिए, यू स्क्वायर साइन साइन 2 अब यहाँ पे एंगल आ रहा है थीटा एट 90 minus theta. So it means that you will get the same value of the horizontal range at two different values of angles, ठीक है ना, at two different angles. One is theta, second is 90 minus theta. मतलब इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से बनाएंगे डायग्राम यहाँ पे। This is x-axis, this is y-axis, this is origin here 0. मान लीजिए पहले मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ इस तरह पे at an angle 30. Suppose it will follow a path like this, ठीक है। Suppose here is the angle 30. तो ये होगा उस वक्त रेंज, ठीक है। अगर हम इसी को दूसरे एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, कौन सा एंगल, 90 माइनस थीटा, थीटा इज है 30, 90 माइनस 30 इज 60। अब अगर हम 60 एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ये एंगल ये होगा 60 डिग्री, देन जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सेम होगा इस तरह से। Is this clear to you? This is at angle 30, this is at angle 60, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, we will get the same value of horizontal range at two different values of angle, two different angles, ठीक है ना। एक है थीटा, दूसरा है 90 थीटा एंड 90 माइनस थीटा। Is this clear to you? यानी कि दो वैल्यूज पे दो एंगल क्या होने चाहिए, एक होना चाहिए थीटा, दूसरा होना चाहिए 90 माइनस थीटा, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से द सम ऑफ द टू एंगल्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी इक्वल टू 90। इस तरह भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स। अगर इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 90। इज दिस क्लियर? सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू 90। मीन्स अगर ये 30 होगा तो ये 60 होना चाहिए, 30 प्लस 60 इज 90। इसी तरह से अगर ये 60 होगा ये 30 होना चाहिए, ठीक है ना। तो पेयर्स बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहले ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख के रखेंगे रेंज के लिए। क्या है एक्सप्रेशन फॉर द रेंज, R is equal to U square sin 2 theta divided by G is equal to U square sin twice 90 minus theta divided by G। ये रेंज के लिए। और इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन हमने जो निकाली है वो है ट्वाइस U sin theta divided by G, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब हम ये देखेंगे कौन कौन सा एंगल है जिसपे हमें सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि मैंने बता दिया थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 90। Is this clear to you? Why theta 1 and theta 2 are the angles at which we get the same what horizontal range। एक पेयर इस तरह से है, अगर ये 30 होगा दूसरा होना चाहिए 60, ठीक है। दोनों के लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा। Is this clear to you? इसी तरह से यह एक पेयर ऑफ एंगल, दिस इज वन पेयर ऑफ एंगल्स। इसी तरह से अगर 20 लेंगे तो यहां से आना चाहिए 70, दूसरा एंगल 70 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 20 होगा, दूसरा एंगल 70 होना चाहिए, तो दोनों के लिए रेंज सेम होगा। इसी तरह से 10 80 भी बन सकता है एक पेयर, ठीक है। इसी तरह से वी कैन से 15 अगर हम ले लेंगे यहाँ से तो 75 भी पेयर बन सकता है। इसी तरह बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं जिनका सम होना चाहिए बराबर किसके बराबर, 90 के बराबर। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, so it is clear that we get the same value of range for a pair of angles whose sum is equal to 90, ठीक है, जिनका सम 90 के बराबर होगा, उनके लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिलेगी। इज दिस क्लियर? ओके, ये हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसके लिए एक और स्पेशल केस है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड स्पेशल केस, सेकंड केस,
maximum horizontal range. अब है maximum horizontal range. This is special case maximum horizontal range. ठीक है. अब जो रेंज के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है R is equal to U square sin twice theta divided by G. अब ये मैक्सिमम कब होगा? फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी, वो हम कांस्टेंट रखेंगे, वो हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. तो अब रेंज जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा? R is maximum if sin of 2 theta is equal to 1. ये मैक्सिमम होगा, मीन्स मैक्सिमम. ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. अब आ रहा है sin 2 थीटा. sin 2 थीटा जो है इसका जो वैल्यू है, इट गोज फ्रॉम 0 to 1. वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1. इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1, मिनिमम वैल्यू है 0 या -1 भी कह सकते हैं. मैग्नीट्यूड लेंगे तो 0. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1. जब ये मैक्सिमम होगा तभी जाके रेंज मैक्सिमम हो सकता है. सो इफ वी कैन राइट एज sin 2 थीटा इज इक्वल sin of 90. लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin 90 1 के बराबर होता है. साइन साइन कैंसल्स, you will get 2 theta is equal pi by 2 if theta is equal, ये 2 यहाँ शिफ्ट करेंगे, pi by 4. So pi by 4 means 45 degree angle. So it means that when we project a projectile, ठीक है ना, with some initial velocity at an angle 45 degree, जब हम 45 एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे इसको, उस वक्त जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी. इज इट क्लियर यू? तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा वो मैक्सिमम. ये एंगल निकाला हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा डायग्राम से. ओके, ये हम यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें सेम रखनी है. ठीक है. बीच में इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे एट एन एंगल 45. ठीक है. दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, इट गोज लाइक दिस. उस वक्त रेंज जो होगा वो होगा मैक्सिमम. इज इट क्लियर? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज. ठीक है. अब अगर एंगल कम करेंगे, छोटे से एंगल पे फायर करेंगे, तो ये डिस्टेंस इतनी कवर करेगा, मान लीजिए 30 एंगल पे. या अगर इसे ज्यादा बढ़ाएंगे एंगल, ठीक है ना, मान लीजिए 60 एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये इस तरह से जाएगा. उस वक्त भी ये कम डिस्टेंस कवर करेगा. मान 60, यहाँ पे मैंने कहा 30 एंड 60 आपस में एक पेयर बना रहे हैं, जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा. तो ये इसको यहां मीट करेगा. इज क्लियर? तो जो एंगल होगा अबो 45, ठीक है, ये एंगल मैं दिखा रहा हूं 45 के लिए, ये एंगल दिखा रहा हूं 30 डिग्री के लिए. ये पूरा एंगल जो इतना बड़ा एंगल है इट इज 60 डिग्री. ये मैंने दोनों चीजें दिखा दी यहाँ पे. तो 45 जब एंगल होगा तब मैक्सिमम रेंज इज मैक्सिमम आर मैक्स. तो यहाँ पे आर मैक्स भी लिख सकते हैं. देन ये मैंने कंडीशन रखी है 45 डिग्री. ठीक है. उस वक्त मैक्सिमम रेंज होगा. तो यहाँ पे जो रेंज होगा वो इससे कम होगा अगर एंगल 45 से ज्यादा होगा या 45 से कम होगा. एज तो फिर यहाँ पे एक और चीज मैंने दिखाई, 30 और 60 ये पेयर बना रहे हैं. कौन सा पेयर? जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगा, इनका सम है 90 के बराबर. तो मैंने इनके लिए, दोनों के लिए रेंज सेम दिखा दिया. अब अगर इससे भी एंगल बढ़ा देंगे, मान लीजिए 80 डिग्री या 70 डिग्री पे फायर करेंगे, तो ये यहां पे हिट करेगा. तो एक और चीज मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे 45, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज. एंगल हम बढ़ा रहे हैं, एंगल हम कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? हाइट कम हो रही है. एंगल बढ़ा रहे हैं तो हाइट भी बढ़ रही है. तो हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ता है.
तो एंगल बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ता है, मगर रेंज कम होता है, ठीक है ना, अप टू देखिए अबव 45, मगर बिलो 45 फिर रेंज फिर डिक्रीज होता है, अप टू 45 इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए 45 के लिए ये मैक्सिमम है रेंज। जब एंगल बढ़ाएगा यहां से अप टू 45, रेंज बढ़ेगा अप टू 45, तो बियॉन्ड 45 जब उससे भी कम करेंगे एंगल, तो जो रेंज है वो क्या होगा, फिर से कम होगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अब जो मैक्सिमम रेंज होगा, देयरफॉर मैक्सिमम रेंज और मैक्स की एक्सप्रेशन क्या होगी, u स्क्वायर डिवाइड बाई g, बिकॉज साइन टू थीटा इज 1। तो ये एक्सप्रेशन है फॉर द मैक्सिमम रेंज। इज दिस क्लियर टू यू? तो वन मोर थिंग इज देयर, तो देयर इज अ यूनिक वैल्यू दैट इज 45 डिग्री, ठीक है ना, जिसके लिए एंगल ऑफ देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द रेंज इज मैक्सिमम। अब जब रेंज मैक्सिमम होगा उसके लिए एक ही एंगल होगा, ठीक है ना, उसके लिए एक ही वैल्यू ऑफ एंगल होगा। बाकी जो भी रेंज होगा उसके लिए दो दो वैल्यूज ऑफ एंगल्स होंगे, जैसे कि 30 60, ठीक है ना, तो इसी तरह से 70 20, ठीक है, 80 10, ठीक है, इसी तरह से 50 40 डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं डिफरेंट रेंजेस के लिए। पर एक रेंज ऐसा है जिसको मैक्सिमम रेंज है, देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच इज 45 डिग्री। इज दिस क्लियर यू? इस तरह से रेंज हो गया। अब है फोर्थ टर्म विच इज कॉल्ड द फोर्थ टर्म इज द velocity of the projectile, ठीक है, velocity of the projectile unit is flight, हाँ, एंगुलर प्रोजेक्शन है। एज यू नो दैट इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, बट इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? तो हम ले लेंगे इसमें एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज यहां पे पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी हियर, ये पॉइंट ले लेंगे हम पॉइंट पी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। इज दिस क्लियर? पॉइंट पी ले लिया हमने, तो पॉइंट पी पे हमें बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी इसकी एट पॉइंट पी। वेलोसिटी या यहां पे लिखेंगे, सपोज at any instant of time t, the projectile be at t x y. Okay, and now अब इस पॉइंट पे हमें नेट वेलोसिटी देखनी है इसकी। इट हैज टू परपेंडिकुलर वेलोसिटीज at each and every point. There are two perpendicular velocities. कौन कौन सी वेलोसिटी है? One is vx, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो किससे बराबर होगी, u cos थीटा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आती है, ये हमेशा हर एक जगह पे ये रहेगी कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी अपोजिंग एंड सपोर्टिंग फोर्स। ओके, एंड द सेकंड वन इज vy, वर्टिकल वेलोसिटी। ये जो प्रोजेक्टाइल है, एज यू नो दैट इट मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, ठीक है ना, इट मूव्स यहां पे लिखेंगे अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, ठीक है ना। सो देयरफॉर जो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी, सपोज v इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, x के बराबर होगी vx प्लस vy, ठीक है, vx एंड vy दोनों का वेक्टर सम लेना है। अब इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, पहले देखिए कीप इट नंबर 1 हियर, व्हाट इज vx, पहले यहां पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड खाली, magnitude of the resultant velocity is equal to, as these two velocity vectors are perpendicular to each other, तो जो resultant velocity का magnitude होगा वो होगा vx square
plus vy square as you know. ठीक है, keep in number 1, इसी का नाम 1 रखेंगे हम. Okay, here what is vx? Vx is the velocity at point P in horizontal direction. At point P the velocity वही है जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, u cos of theta. ठीक है, and what is vy in vertical direction at point P? ये अब बताना है हमें. At point P. Okay, this is to be determined first. vy ये डिटरमाइन करेंगे. इसके लिए we have velocity time relation. velocity time relation है, मोशन हमें कंसीडर करनी है फ्रॉम O to P. तो what is the velocity time relation? Velocity time relation is vy minus uy is equal to ayt. Is this clear? Okay. अब हम इसको यहां पे लिखेंगे. What is vy? Vy is the velocity at this point, that is vy. Okay? And what is uy is the initial vertical velocity. Initial vertical velocity is u sine of theta. Okay? Is equal to ay. Ay is minus g. ठीक है? And into t. जो यहां से यहां तक टाइम लगा, टाइम t. ठीक है? And now we can write it as vy is equal to minus, ये शिफ्ट करेंगे यहाँ प्लस बनेगा, तो ये बनेगा u sin of theta minus gt. So this is the expression for what? The vertical velocity at point P. ये हम पुट करेंगे vx and vy यहाँ पे पुट करेंगे. We will get, therefore equation first becomes the magnitude of the velocity is equal to under root of vx square. What is vx? It becomes u square cos square theta plus what is vy? It is u sine of theta minus gt whole square. स्क्वायर इसके साथ है तो होल स्क्वायर बनेगा ये. तो अब यहां पे आते हैं. Now the magnitude of the instantaneous velocity at point P of the projectile is equal to under root of, this will become u square cos square theta प्लस ये ओपन करेंगे a minus b whole square, ये बनेगा u square sin square theta प्लस g square t square, फिर बनेगा माइनस ट्वाइस u g t साइन ऑफ थीटा. दिस इज क्लियर. a माइनस b होल स्क्वायर यूज किया हमने यहाँ पे, तो दिस कैन बी रिटन एज, इन दो में से यूज कर कॉमन ले सकते हैं, यूज कर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर t square minus twice u gt sin of theta. Okay, this will become under root of, ये 1 के बराबर होता है as you know, u square plus g square t square minus twice u gt sin of theta. This is the final expression for the velocity of projectile.